بیماری آ گئی. اندر کیا ہو گئی؟ بیماری آ گئی. جیسے جسم بیمار ہو جاتا ہے نا, اس کو گوشت کھلاؤ, کہتے ہیں نا پورا دل نہیں مانتا جی, مرغا کھلاؤ, مٹھائی کھلاؤ, کیا ہو گیا کہ اس کا جسم بیمار ہے. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے, اچھی غذا کھانے کو دل نہیں کرتا, ایسی جب روح بیمار ہوتی ہے اچھے اعمال کرنے کو دل نہیں مانتا. اب ہم سب اندر غور کر کے دیکھیں کہ میری روح بیمار ہے یا تندرست ہے. اگر تندرست ہے اس کی روح, عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تو پھر اس کی قرآن کی تلاوت سے اس کا جی نہیں بھرے گا, اللہ کے ذکر سے اس کا دل نہیں بھرے گا. اللہ کے لیے خرچ کرنا, جان مال لگا کر اس کو خوشی محسوس ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اندر تندرست ہے, ورنہ کالا ہے. کالی روح لے کے چلے گئے. کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام جب آدمی کو لے کے جاتے ہیں نا, دیندار آدمی کو, تقوی والے آدمی کو, نمازی آدمی کو, پرہیزگار کو, جب اسرائیل علیہ السلام لے کے جاتے ہیں نا, پہلے تو آتے ہی اس کا استقبال ہوتا ہے, 500 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں. اسرائیل سلام کرتے ہیں, السلام علیکم. کیا کہتے ہیں؟ چارے مبارک روح ایسی بیریوں کی طرف گرنے کھاتے ہیں, ایسے سائے کی طرف جو بڑا وسیع ہے. تمہارا امتحان ہو چکا, تم پاس ہو. خوشی میں, غمی میں, سفر حجر میں تمہارا امتحان ہو گیا, چلو چلنا ہے. وہ روح بڑی خوش ہوتی ہے, جسم سے اس طرح جلدی نکلنے کی کوشش کرتی ہے جیسے کہ پنجرے میں سے جانور نکلنے کو فڑفڑاتا ہے, جلدی نکل دو. پھر لے کے جاتے ہیں اسرائیل علیہ السلام اس کو, آسمان کا دروازہ کھٹکاتے ہیں. کون کہ یہ فلاں بن فلاں, فلاں بن فلاں کو لایا. وہ کہتے ہیں مرحبا مرحبا, ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں. اور جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان پر 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتے ہیں. کون ہے یہ؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے حکم پورے کیے, سردیوں میں بھی, گرمیوں میں بھی, رات میں بھی, دن میں بھی, مارے مارے پھرا اللہ کے لیے, کھاٹ کھاٹ کا پانی کیا اللہ کے لیے. یہ اللہ کا دوست ہے. جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال. اور یہ روح عرش کے سامنے اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتی ہے. سجدے میں کون گرے گا؟ جس نے دنیا میں سجدے کیے ہو وہ گرے گا سجدے میں. جمعہ دار جمعہ نماز پڑھنے والا تھوڑی کرے گا آگے خالی جمعے کو نماز پڑھنے کے لیے. کیوں جی ایسے ہی کرتے ہیں نا, جمعے کے دن تو یہ مسجد چھوٹی رہ جاتی ہے. کیوں جمعہ گیا نمازی بھی گئے, گویا کہ جیسے کہ ایک جمعے کی نماز فرض ہوئی. کیوں جی ایسا ہی ہے. حالانکہ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے, اور جس بندے کو دنیا میں اللہ سے ملاقات ہی نہیں پسند, کیا اللہ اس سے قیامت کے دن ملاقات کرنا پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم گھر میں اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں, دشمنوں کو نہیں. اللہ جنت میں اپنے دوستوں کو داخل کرے گا, اپنے دشمنوں کو نہیں. یہ دنیا میں مسجد اللہ کے گھر ہیں, جنت کے باغ ہیں. اس میں کون آئے گا؟ اللہ کا دوست. میرے دوست یہاں آؤ مسجدوں میں, اپنے رب کے گھر میں میرے دوست ہو. ہم کہتا نہیں کہ اللہ بھی ہم تو پہلے جمعے میں آئے گا. کہاں آئیں گے؟ جمعے میں آئیں گے. بس اتنی دور رہتے ہیں, جمعے میں آئیں گے. تو جی یہ دوستی ہیں. بندہ مسجد میں نہیں آتا, یا تو اللہ اس سے ناراض ہے یا یہ اللہ سے ناراض ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ ہی ناراض ہے بندے سے. اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں, سنو بھائی, جب اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کا رزق نہیں چھینتے. ہاں رزق تو اللہ ناراض ہو کے زیادہ دیتے ہیں کہ لے لو اتنا لینا. بے قیمت ہے نا, بے قیمتی چیز تو زیادہ ملتی ہے, لے لو اتنی لینا. رزق نہیں چھینتے, سجدے کی توفیق چھین لیتے. جس کو اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرنا دنیا میں, اس کا رب اس کے ناراض ہے کہ مرتے ہی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا. جان لے, وہ مرتے ہی اللہ کی عذاب میں گرفت میں پکڑا
जनता भी बहुत बड़ी है और अल्लाह की पकड़ भी बड़ी सख्त। जब वो पकड़ने पर आ गया तो कोई छुड़वा नहीं सकता, जब छोड़ने पर आ गया तो उसे कोई पूछ नहीं सकता कि इसको क्यों छोड़। तो बात मैं याद कर रहा था कि दोस्तों बुजुर्गों, जन्नत में वो रूह अर्श के सामने सजदे में गिरे और उसके बाद उस रूह को जन्नत में ऐसी जगह रखा जाता है कि उसको क़यामत तक राहत ही राहत मिलेगी। दो जगह है, इल्लीन सिज्जीन, दो जगह है, एक में नेक लोग रहते हैं, एक में बुरे लोग रहते हैं। अब जो काली रूह है, बेनमाजी हैं, हराम देखने वाले, हराम सुनने वाले, हराम खाने वाले, क्यों जी? हराम खाने से अंदर नापाक हो जाता है। आदमी जाहिरी पाकी तो हासिल कर लेता है, गुस्ल करके, गुस्ल कर लिया, जाहिरी पाक हो गया। हराम खा खा के अगर अंदर नापाक कर लिया, वो पाक हो जाएगा भाई? हराम खा खा के अंदर नापाक कर लिया, खून भी नापाक, इसका गोश्त भी नापाक, इसकी हड्डियां भी नापाक है। क्यों? हराम से बनी है। किससे बनी है? हराम से। अपनी औलाद को हराम खिलाया, क्या वो जुनैद बगदादी जैसे बनेंगे? खिलाया तो उनको हराम है, खिलाया गया, खिलाया तो हराम है। कैसे बनेंगे वो? माँ बाप के फरमाबरदार बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रगों के अंदर हराम खून दौड़ रहा है, उनके ख्यालात हमेशा गंदे रहेंगे। हराम खून जब जिस्म में गर्दिश करता है, दिल के अंदर से गुजर के जाता है और उसको गंदे गंदे ख्याल, कोई बुरा काम करूं, कोई बुरा काम करूं, कोई बुरा काम करूं। क्यों? क्योंकि काली रूह की जो खुराक है वो गंदगी है। क्या है जी? गंदगी है। जब तक वो खुराक ना इस्तेमाल कर ले उसको चैन नहीं है, वो गुनाह के लिए बेचैन रहता है। गुनाह करूं अंदर से बेचैन है। क्यों? उसकी खुराक है, जब खुराक मिल गई तो चैन आ जाता है। हराम में फिर लज्जत आती है। क्यों? क्योंकि खुराक मिल गई। हराम देखने में, हराम सुनने में, हराम बोलने में लज्जत आती है। क्यों? क्योंकि खुराक मिल गई, हम उसको सुकून मिल गया। जिसकी खुराक गंदगी बन चुकी है, गुनाह बन चुके हैं, ये काली रूह लिए फिर रहा है अपने जिस्म में। अगर इस हालत में मौत आ गई इसकी तो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की गिरफ्त में चला गया। इजराइल अलैहिस्सलाम इसकी रूह निकाल के लेके जाएंगे आसमानों पर, आसमान का दरवाजा खड़काएंगे। भी कौन? कहीं फलां बिन फलां, तो कहेंगे बड़ी बदबूदार रूह है, इसको यहाँ पर बड़ी बदबूदार है, उसको, उसके लिए आसमान के दरवाजे, जिसके लिए भाई आसमान के दरवाजे ना खुले वो जन्नत में कैसा चला जाए? क्योंकि गंदगी को अल्लाह ने पसंद किया, उसके रसूल ने पसंद किया। गंदगी को किसी नबी रसूल ने पसंद नहीं किया, तो हम गंदगी को पसंद करके जन्नत में कैसे चले जाएंगे? गंदगी की बिना पर तो जन्नत से निकाले, जाहिरी गंदगी की बिना पर, जाहिरी गंदगी की बिना पर जन्नत से निकाले गए। जो बातिनी गंदगी है, बातिन गंदा करके ले गया, तो इस बिना पर जन्नत में कैसा चला जाएगा? जाहिरी गंदगी का इतना बड़ा नुकसान नहीं है, जिसका अंदर गंदा होगा इतना बड़ा नुकसान है। इसलिए मेरे भाइयों, कहीं हमारी इस नशे में जिंदगी खत्म नहीं होती। मौका है हमारे पास अपनी आखिरत बनाने का, आखिरत संभालने का। आज ही तौबा करें, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन लोगों के हुकूक जो है वो माफ नहीं होंगे, वो देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? हुकूक देने पड़ेंगे। अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देगा, लेकिन लोगों के हुकूक, मखलूक के हुकूक वो बाकी रहेंगे। जब तक वो माफ नहीं करेंगे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हमने किसी की गिबत कर दी, किसकी गिबत कर दी, हमने उसका हक मारा, तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। उससे माफी मांगो जिसकी गिबत की है, उससे माफी मांगो जिसको गाली दी है,
उससे माफी मांगो। जिसको थप्पड़ मारा है वो माफ करेगा तो अल्लाह माफ करेगा, अगर उसने माफ ना किया तो अल्लाह नहीं माफ करेगा। आदमी परवाह नहीं करता इसकी, क्यों जी? परवाह नहीं करता, लड़ता झगड़ता है, लोगों के हक मारता है। मुसलमान के भी हुकूक मारा है, गैर मुस्लिम के हुकूक मार के हम खुश होते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुस्लिम है, मार लो, लड़ाकू कर लो, क्या है, कौन पूछने वाला है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जो किसी गैर मुस्लिम के हुकूक मारेगा, हक मारेगा, किसका? गैर मुस्लिम का, आपने फरमाया कल क़यामत के दिन उस गैर मुस्लिम की तरफ से मैं वकालत करूंगा। कौन कह रहे हैं? अल्लाह के नबी कि उस गैर मुस्लिम का वकील कौन होगा? मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वकील होगा, उसको उसका हक दिलवाऊंगा। हक दिलवाएंगे अल्लाह के नबी, देने को क्या होगा? नेकी तो दे नहीं सकते, फिर क्या कहेंगे कि इसके बुत परस्ती के गुनाह इसके ऊपर डालो। जिसने कभी की नहीं बुत परस्ती, कि वो गुनाह जिसने जिना किया, बुत परस्ती की, जितने भी काम किए, वो इस पर डालो, इस पर ईमान वाले पर, और इसको जहन्नम में डालो। हम खुश हो जाते हैं, गैर है, जो चाहे कर दो, डरना चाहिए उन्हें। अल्लाह के नबी कहता है मैं वकालत करूंगा उसको, तो गैर मुस्लिम की तरफ से। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया की जिंदगी हम अपनी पाक साफ जिंदगी, ईमान वाली जिंदगी, नमाज वाली जिंदगी, नमाजों का एहतमाम, नमाज के बगैर तो हमें चैन ही ना। कम कमा लेंगे कोई बात नहीं, क्यों जी? 3 रोटी के बजाय 2 खा लो, नमाज नहीं छूटनी चाहिए। हम तो फेरी लगाने वाला एक आदमी फेरी लगाता लगाता किसी इलाके में चला गया, वहां कोई मुसलमान नहीं, कोई नमाजी नहीं, सब गैर हैं, वहां अजान देकर नमाज पढ़ता है। इतनी बड़ी फरिश्तों की जमात उसके पीछे नमाज पढ़ती है, जिसकी दोनों किनारे देखे नहीं जा सकते। आता नहीं इंग्लिश में, एक बकरियां चरवाने वाला चरवाहा जंगल में अजान देकर नमाज पढ़ता है, तो इतनी बड़ी फरिश्तों की जमात उसके पीछे नमाज पढ़ती है। एक ताजर तजारत करता हुआ, कारोबार करता हुआ नमाज का एहतमाम करता है, ये ताजर कल क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा। अंबिया और शोहदा सिद्दीकीन के साथ इसका हश्र होगा, सच्चे ताजिर का, सच्चे ताजिर। एक मजदूर जब मजदूरी करके रात को थक कर सोता है, दीनदार मजदूर, अल्लाह उसकी थकावट पर उसके दिन भर के तमाम गुनाहों को माफ कर देते हैं। मजदूर है, सारे गुनाह माफ कर। ये काश्तकार है, कहते हैं काश्तकार जो दीनदार है, उनकी खेती अल्लाह का जिक्र करती है, उसका सवाब काश्तकार को मिलता है। एक बेलचे के बदले जब वो अपने खेत में चलाता है, 1 साल की इबादत का सवाब उसको मिलता है। एक टेलर मास्टर अल्लाह के रसूल के पास आया, या रसूल अल्लाह मैं दर्जी हूँ, लोगों के कपड़े सीता हूँ। आपने फरमाया बहुत अच्छा कारोबार है, अगर तुमने किसी का कपड़ा नहीं रखा, ख्यानत नहीं की, आज तो क्या करते हैं, रख लो कपड़ा, इसको क्या पता चला, रख तो लिया, एक तो तुम्हारी कमाई हराम हो गई, उसको पता नहीं चला, अल्लाह को पता चल गया। क्यों? अल्लाह हलाल रोजी दे रहा है, हम कहते हैं नहीं अल्लाह नहीं, हमें तो हराम चाहिए, दे रहा वो हलाल। क्यों जी? आसमानों से जो पानी उतरता है नीचे गिरता है, वो पाक साफ होता है, गंदी जगह गिरा गंदा बन गया, पाक साफ जगह गिरा वो पाक साफ बन गया। ऐसे ही ये कारोबार, जितनी ये चीजें हैं, एक बर्तन है, गंदे बर्तन में पाक साफ रोटी डाल दी तो वो गंदा हो गया, गंदी होगी। हाँ, तो वो टेलर मास्टर से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुमने नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह के हुक्म पूरे किए, खयानत नहीं की, आपने फरमाया तुम्हारी एक सुई कपड़े में निकालने के बदले 1 साल की इबादत का सवाब अल्लाह तुझे देगा। एक सुई के बदले। अब कितनी सुई निकाले?
دین پر چلے، نمازیں پڑھی تو دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی بن رہی ہے۔ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ ان کے باغ میں تھے، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ دیکھے، ہاتھ، آپ نے ان ہاتھوں کو چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے یہ ہاتھ ایسے کیوں پکے ہوئے، گٹھے پڑے ہوئے؟ کہ یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، اور اس باغ میں اپنے ہاتھوں سے اس باغ کو پانی پلاتا ہوں اور خود کام کرتا ہوں، باغ میں بچوں کو حلال کما کے کھلاتا ہوں۔ آپ نے ان ہاتھوں کو چوما، فرمایا یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جا سکتے، یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں دنیا میں رہنا ہے، اس لائن کا ہم دین بھی سیکھیں۔ میں تاجر ہوں، اس لائن کا دین کیا ہے؟ میں مزدور ہوں، اس لائن کا دین کیا ہے؟ میں ٹیلر ماسٹر ہوں، اس لائن کا دین کیا ہے؟ میں کاشتکار ہوں، اس لائن کا دین کیا ہے؟ میں حاکم ہوں، اس لائن کا دین کیا ہے؟ ایک دن کا عدل و انصاف 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 80 سال کی عبادت سے بہتر۔ عدل انصاف کرنے والے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں دین پر تو تب چلیں گے جب دین کو سیکھیں گے۔ کیوں جی؟ ٹیلر ماسٹر تو تب بنتا ہے جب آدمی سیکھتا ہے، ڈاکٹر تو تب بنتا ہے جب آدمی ڈاکٹری سیکھتا ہے، وکیل تو جب بنے گا جب وکالت سیکھے گا۔ پہلے محنت ہے، پہلے ہر چیز کی کیا ہے جی؟ محنت، اور دین کی بھی محنت ہے۔ دین کی محنت کریں گے تو دیندار بنے گا، اگر محنت نہ کی تو دین کا دعویٰ رہ جائے گا، زندگی دین سے کھلی رہے گی۔ آج ایسے ہی ہے، ایمان والے نے دین کی محنت چھوڑ دی تو دعویٰ رہ گیا، میں دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا تمہارا کن لوگوں کی فہرست میں نام آتا ہے۔ ایک اللہ والے قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر اور سن کر بہت رویا کرتے تھے۔ کون سی آیت ہے قرآن کی؟ سورہ یاسین شریف کی آیت، بَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرم لوگ فرما برداروں سے نہ پوچھو۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں میرا کن میں شمار ہوگا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کن میں شمار ہوگا۔ ہم ڈرتے ہیں کبھی؟ شیطان نے ہم مطمئن کر دیا تم نمازی ہو، بڑے دیندار ہو، بڑے تقوی والے ہو۔ شیطان کے پاس 70,000 دو جو ہیں وہ نورانی دو ہیں۔ ہاں مارتا ہے ایسے، وہ جانتا ہے کون کیسے قابو میں آئے گا، یہ نمازی کیسے قابو میں آئے گا، یہ تبلیغ والا کیسے قابو میں آئے گا، یہ فلاں کیسے قابو میں آئیں گے، وہ ویسا دو مارتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، دعوت کا کام دیا ہے۔ یہ دعوت کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے اپنا دین قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو اپنے دین کی بقا کے لیے اللہ نے اس امت کو منتخب کیا۔ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، ساری امتوں پر اللہ نے اس امت کو سرداری دی، دعوت کی بنا پر، عبادت کی بنا پر نہیں۔ عبادت کرنے والے تو ہم سے پہلے بہت چلے گئے، اس امت سے پہلے ایسی ایسی قومیں آئی، ایسے لوگ آئے جنہوں نے ہزاروں سال عبادت کی، ہزاروں سال، وہ پہنچ گئے اللہ کے یہاں۔ اور ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے 10% زکوٰۃ دی، وہ بھی چلے گئے، اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ ہماری تو زکوٰۃ کتنی ہے بھائی؟ 2.5%، ان کی 10%۔ ہماری عمر کتنی؟ 60 70 سال 80 سال، ان کی عمر 1000 سال کی۔ ہمارے پاس عبادت 40 50 سال کی، ان کے پاس عبادت ہزاروں سال کی۔ ایسے لوگ پہنچ گئے، اور ہمارے روزہ 15 16 گھنٹے کا، ان کا روزہ 24 گھنٹے کا۔ بنی اسرائیل کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، وہی شہری وہی افطاری، وہی شہری وہی افطاری۔ اگر کسی سے گفتگو کر لیتے تھے روزے میں، ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، اتنا سخت روزہ۔ ایسے لوگ بھی پہنچ گئے اللہ کے یہاں۔ ہاں لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سنو ادھر دھیان دو، کل قیامت کے دن اللہ کیا کریں گے؟
हजारों साल की इबादत वालों को अल्लाह रोकेगा, तुम रुको। ये 40 साल 50 साल की इबादत वाले पहले जन्नत में, तुम जाओ। इस उम्मत को अल्लाह कहेगा मेरे हबीब की उम्मत तुम जाओ, तुम रुको, ये जाएंगे पहले। 10% ज़कात देने वालों को अल्लाह रोकेगा, तुम रुको। चलो भाई 2.5% वाले कहाँ हैं, तुम जाओ। इनको अल्लाह, वो देखेंगे सारी कौमें इस उम्मत की इज्जत, इस उम्मत का एजाज़ और इकराम अल्लाह जो करेंगे आखिरत में कि तुम जाओ। 24 घंटे जिन्होंने रोजे रखे, प्यासे रहे, कि तुम रुको, चलो भाई तुम जाओ। अल्लाह हमें दाखिल करे। इस उम्मत को ये मर्तबा, ये मुकाम, ये बुलंदी, ये इज्जत अल्लाह ताला ने जो दी है वो दावत की बरकत से दी है। दावत का काम इस उम्मत की जिम्मेदारी है। ये उम्मत कल क़यामत के दिन इस उम्मत की शान जो होगी नबियों की तरह शान होगी। 5 कौमों के लोग पूछेंगे फरिश्तों से किस कौम के नबी हैं, किस कौम के रसूल हैं। फरिश्ते जवाब देंगे किसी कौम के नबी रसूल नहीं है, ये अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले लोग, अल्लाह के दीन के खादिम हैं। इनकी जिंदगी का मकसद अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करना था। ये वो लोग, तो हमारी जिंदगी का मकसद जो हो अल्लाह के दीन को दुनिया में जिंदा करना, जमीन पर फिरना, अल्लाह के दीन के लिए मारे मारे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, इस उम्मत का इम्तियाजी शान है। ये उम्मत जो है दुनिया में अल्लाह का तारुफ करवाने के लिए पैदा हुई है। हम अल्लाह का तारुफ करवाने के लिए पैदा हुए हैं, हम अल्लाह की पहचान करवाने के लिए हमारा वजूद है। हाँ, हम अल्लाह की बड़ाई बोलने के लिए आए हैं, हम अल्लाह की कुदरत बोलने के लिए आए हैं, हम बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए आए हैं। हम बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए आए हैं। क्यों? हमारा नबी हमारे जिम्मे लगा के गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इधर ध्यान दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी ही में अपनी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए, अपनी कुर्बानियों से अपनी जान माल की बाजी लगा के पेड़ पर पत्थर बांध बांध कर ताइफ के मैदान में लहूलुहान होकर, ओहद के मैदान में जख्मी होकर, दंदान मुबारक आपके शहीद हुए, बेटियों को, आपकी बेटियों को तलाक हुए, लहूलुहान आप ताइफ में हुए, घर के चूल्हे आपके बुझे, आपकी बच्चियों ने फाके किए। ये सब कुछ करके आपने एक उम्मत बनाई जो दीन की मेहनत करने वाली थी। 1.25 लाख सहाबा, मर्द भी, औरतें भी, बच्चा बच्चा, बच्चे बच्चे की जिंदगी का मकसद था अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो जाए। हम रहे ना रहे, अल्लाह का दीन दुनिया में चमके। हम मिट जाए, अल्लाह का दीन ना मिटे। मेरा कुछ लग जाए। उमैर बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु बदर के दिन छुपते फिर रहे थे। उनके भाई ने देख लिया, साद बिन अबी वक्कास ने पूछा, उमैर क्यों छुप रहे हो? अर्ज किया, भाईजान मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरी अल्लाह के रास्ते में जाने की तमन्ना है और अल्लाह के दीन के लिए जान देने की भी मेरी आदत है। मैं इसलिए छुप रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ना देख पाए, इसलिए छुप रहा हूँ। जो खटका था दिल में सामने आ गया, अल्लाह के नबी ने देख लिया कि बच्चे तुम वापस जाओ। रोने लगे, बलबला था अल्लाह के दीन के लिए जान देने, रोने लगे। आपको पता चला, आपने इजाजत दी। दूसरे दिन अल्लाह के रास्ते में गए भी और शहादत का जाम भी पाया। इस उम्मत का बच्चे ऐसे थे, मर्द कैसे, औरतें कैसी थी, औरतें कैसी थी। माओ के बेटे शहीद हुए। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा का बेटा हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। कहाँ? अल्लाह के रास्ते में। माँ को पता चला, उम्मे अमारा मेरे बेटे के साथ क्या हो गया? एक ठंडा सांस भरा, फरमाया, बचपन में मैंने जो अपने बेटे को अपनी छाती का दूध पिलाया था
हाथ कहीं है, पाँव कहीं है, गर्दन कहीं है। बेटे के टुकड़ों को मुखातिब होकर कहा, मेरे बेटे कल क़यामत के दिन जब तेरी अल्लाह के यहाँ पेशी होगी तो तेरे साथ मैं भी खड़ी हूँ अल्लाह की बारगाह, और अल्लाह से कहूँगी कि अल्लाह ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है जो तेरे नबी के दीन के लिए अपने आप को कटवा के आया है। मैं बड़ी सरखुशी से अल्लाह को कहूँ, इस उम्मत की औरतें तो ऐसी हैं, उम्मत की औरतें ऐसी हैं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक चादर है माले गनीमत में, बड़ी खूबसूरत चादर थी। आपने पूछा अभी किसको दी जाए, तो साहबा ने मुख्तलिफ राय दी। आपने फरमाया कि खातून अहद को बुलाओ। साहबा ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन खातून अहद कौन है? कहा उम्मे अमारा को बुलाओ। तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि उम्मे अमारा अहद के दिन मेरे लिए भागी फिर रही थी, अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द भागी फिर रही थी और मुशरिकीन के हमले अपने पर रोक रही थी कि मेरे नबी पर कोई आंच न आए। जख्मी हो गई, बेटा भी जख्मी हो गया, बेटे के पट्टी बांधी और बांध के कहा, मेरे बेटे मेरे लाल, अगर तेरे होते हुए मेरे नबी पर कोई आंच आ गई तो याद रखना मैं तुझे मौत तक माफ नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान हो गया। इतनी माओं की तशकीलें तूने बेटा कुर्बान। हम तो पता नहीं दुनिया के नशे में है, पता नहीं कौन सा दिल ये करते हैं, पत्थर जितनी मर्जी बात सुन रहे, कुछ कर रहे हैं, दिल नहीं। साहबा इकराम का साहबियात का जीना मरना अल्लाह के दीन के लिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने